ਕੇ ਅੱਗੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਬਰੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆਣ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਦੀ ਆਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੜੋੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਣ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਆਪ ਥੱਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਆਓ ਯਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਯਾਰ ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਡਬਲ ਟੈਪ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਬਲ ਟੈਪ, ਯਾਨੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 4U 'ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, अब तो इनकी जो ब्राड है ना, वो 1 घंटा आप पर ये बात ना करें तो इनकी ब्राड ही नहीं चलती। ये भूल गए हुए हैं हयाते ईसा, वफाते ईसा, खत्म नबूवत भूल गए। वो इनको पड़ गई हुई है कि भाई अब उधर हम नंगे हो रहे हैं, तो अब लोगों को हम बताएंगे क्या? अब लोगों को वो मौलवी 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 नहीं करेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, तो हमारी बराड पर कौन बैठेगा? जबकि आपके आने से पहले ये अनम जुबैर लिख रही हैं जी, फॉर यू पे है अभी, तो एक इंज पता चलता है जी फॉर यू थे पे, ये भी सानू तरीका भी दसो। शाह जी, वो रैंडम ना लाइव वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो ना, उत्थे फिर स्क्रोल करते जाओ, विच ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡ ਅਗਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਰ ਯੂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਾਰ ਯੂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਕਈ ਸੀਕਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਸੀਕਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। अच्छा जी, मैं तकरीबन 3.5-4 साल तो ना टिकटॉक लाइव ते मैं नवें सारी चीज़ मैंने टिकटॉक लाइव दी सारी चीज़ां पता ने जी। शाह मोहतरम, एक और सीक्रेट आया हुआ है। एक और सीक्रेट ये है कि बंदा तो सिर्फ 10 आपके पास बैठे हुए हैं, बंदे सिर्फ 10 है जो सुनने वाले हैं, बाकी फेक आईडी 400-400, वो पता नहीं क्या है, उसको वो बूस्टर होता है उस्मान भाई, वो पेड बूस्टर लगता है, कॉइन्स परचेज करने पड़ते हैं या फिर आप डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर दो, दोनों तरीकों से। जी जी, वो बूस्टर है, लोगों को शो होगा कि भाई बंदे के पास 900 बंदा बैठा है, 900। वो बंदा हैरान होकर सुनता है कि भाई 400 बंदा 900 बंदा अगर सुन रहा है, पता नहीं देखते क्या बात हो रही है, वो लगा बूस्टर होता है। ये बड़ी आजकल चल रही है, और इन वो बंदों का भी मुझे पता है जो चला रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ।
ਹਾਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਈ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਡ, ਝੂਠ, ਧੋਖਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਮ ਸਾਦੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਲ ਵਲੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਚਾਏ। ਦਜਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਦਜਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੁਬਾਲਗੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਜਲ ਤੋਂ ਦਜਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੌਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਨਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਹਤ ਸਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਝ ਜਨਾਬ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਲ ਔਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ, ਭੇਡਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੰਝ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਕੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਟੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਜਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਆ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ, हेलो हेलो जनाब गांडू साहब, ये क्या लिखा हुआ है आपने गांडू? हेलो, हाँ, तो बस ये है ना, ये देख रहे हैं अभी बस यही है, दज्जाल की तैयारी हो रही है। अब वो लिखा हुआ है, नाम इतना गलीज किस्म का मेरे भाई ने लिखा है, गांडू। अब क्या ये गांडू, ये कोई आईडी है? अजीबो गरीब ये वही दज्जाल की तैयारियां हो रही हैं। चलो बहरहाल मर्जी है भाई, थोड़ी आईडी है, जो मर्जी नाम रखो, साडा की जांदा है। क्यों भाई राजपूत? अच्छा जी, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਤਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਲ ਕਾਲੂ ਬਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਖੋਗੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੋ ਜਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਰਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਾ ਕੋਈ ਆਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਫਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਆਜਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਬੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, कहने लगा कि देखो जी
اگر پیر مہر علی شاہ صاحب سچے ہیں تو ایک سورہ فاتحہ کی عربی تفسیر لکھیں، تو میں بھی عربی تفسیر سورہ فاتحہ کی لکھتا ہوں، تو پھر دونوں ہی عربی تفسیر لکھ کے کسی عربی ماہر کو دکھائیں گے، جس کی عربی تفسیر اچھی ہوگی تو وہ بندہ سچا ہوگا، جس کی عربی تفسیر غلط ہوگی وہ بندہ جھوٹا ہوگا۔ یہ مرزا نے اشتہار دے دیا، اور مجموعہ اشتہارات کے اندر یہ اشتہار موجود ہے۔ اب ہوا یہ کہ مرزا قادیانی کا یہ اشتہار جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے یہ اعلان کیا، اوے کذاب، اوے دجال، تو کہتا ہے کہ میں عربی تفسیر لکھوں سورہ فاتحہ کی، اور تو کوئی کھڈ کے اندر گھس گیا، تو نکل باہر، ادھر سامنے آ کے ادھر کاپی اور پینسل لے کے آ، کاغذ دونوں رکھتے ہیں سامنے، اور ایک کاغذ کے اوپر 2 قلم رکھتے ہیں، ایک قلم تو رکھ، ایک قلم میں رکھتا ہوں، اپنے قلم کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، جس کا قلم عربی تفسیر لکھے تو وہ بندہ سچا۔ تو یہ آپ نے مباہلے کا چیلنج کر دیا، پہلے مناظرے کا چیلنج تھا، اب مباہلے کا چیلنج کر دیا۔ اب مرزا سینئر غلام قادیانی جو مرزا جونیئر جیلمی کا باپ ہے وہ کھڈ میں بڑھ گیا، پھر کہنے لگا نہیں انج تے نہیں، پھر یہ ہے تو وہ ہے، یہ روحانی باتیں ہیں، یہ پیروں کی اور مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، نہیں کار بڑھ کے میں لکھنی ہے۔ تو وہ مد مقابل آنے سے ڈر گیا، بھاگ گیا۔ اب اس نے جناب گھر میں ہی بیٹھ کے نا ایک 2-4 صفحے لکھے عربی کے، اور اس کا نام رکھا کہ یہ سورہ فاتحہ کی میں نے عربی تفسیر لکھی ہے، نام اس کا رکھا اعجاز المسیح۔ اس نے رشید رضا کو یہ چیک کروائی، جو کہ جامعہ ازہر کا اس ٹائم عربی کا پروفیسر تھا اور رسالہ المنار کا ایڈیٹر تھا، تو پوری دنیا کے اندر بڑا اس کا نام تھا کہ یہ بہت اچھا ادیب ہے، شاعر ہے، اور بہت عربی نثر کے اندر بڑا ماہر ہے، علم صرف اور نحو کے اوپر اس کو بڑی گریفت حاصل ہے۔ مرزا قادیانی نے پہلے اپنی کتابوں کے اندر بڑے تعریفوں کے پل باندھ دیے، رشید رضا یہ، رشید رضا وہ، اس جیسا تو بندہ ہی دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تھوڑی سی تعریفیں کر لو، بعد میں جب میں اپنی عربی تفسیر اعجاز المسیح اس کو چیک کروانے کے لیے بھیجوں گا تو وہ ذرا بڑی میری تعریف کرے گا اور بہت مطلب کہے گا کہ بڑی زبردست تو نے عربی لکھی ہے۔ تو یہ اس کی نیت تھی۔ اب ہوا یہ کہ جناب جب رشید رضا کے پاس اعجاز المسیح کا مسودہ پہنچا تو اس نے جناب پوری کتاب کو کاٹی لگا دی، اور اس نے آخر کے اندر لکھا عربی کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کس الو کے پٹھے نے یہ لکھا ہے جس کو اس نے عربی کا نام دیا ہے۔ یہ ایک جملہ صحیح نہیں ہے، تو انی دیا بچے، یعنی یہ اس کا نا مفہوم بن رہا ہے، استعارہ کے رنگ میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ جناب جب وہ واپس مسودہ آیا نا مرزا قادیانی کے پاس، تے وہ ویکھ کے جناب منہ دا کھلا ایک ہی ہو گیا جی، میں تے کیا سی میرے نمبر ٹنگے جان گے، کوئی چلو میری جڑی بچی کچی کوئی تھوڑی بہت عزت ہے وے وہ برقرار ہو جائے گی، یہ تو کم خراب ہو گیا، تے مینوں انہیں لتر ماریا، بڑا پٹھا لتر۔ اب جناب مرزا قادیانی جناب وہ گالیاں نکالی رشید رضا کو، تیری بہن دی، تیری ماں دی، اور تیری ذریعہ البغایا، اور رنڈی کے بچے، اور گشتی کے بچے،
او کتی کے بچے، بڑا کچھ جناب، جو اس کے منہ میں آیا اس نے بکواس کی. جو ہماری فتح کا قائل نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور اس کی مائیں کتیوں سے بڑھ گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ تو تھی اس کی عربی. ہاں جی، یہ تو تھی اس کی عربی. اب اس نے جو اجاز المسیح لکھی ہے اس کا جو فرسٹ پیج ہے، اوپر والا جو ہوتا ہے ٹائٹل پیج جس کو کہتے ہیں، اس ٹائٹل پیج کے اندر یقین منیو کوئی 10 دے قریب فاش عربی اغلاط نے، فاش تے ایچ ڈی قادیانی مربی آ نا یار ذرا کال پا بھائی، کال پا قادیانی مربی، ایچ ڈی مربی آ نا یار، کوئی گل کریے. جی سی احمد بھی مربی ہے شاہ جی. السلام اچھا ایک، علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی شکر اللہ دا جناب. سرکار؟ اپنا قادیانی تے ہو گیا کافر، نال انجینئر صاحب دی فوٹو میں لائی ہے. قادیانی کے انج کافر ہو گیا جی؟ اور رسول اللہ دی ختم نبوت دا منکر ہے. کون ہے؟ ایک منٹ تسی لاؤ گپ، میں 1 منٹ تانوں کردا، 1 منٹ صرف تسی کیری آن کرو، میں جوائن کرتا. چلو اچھا، نویں کل نو ذرا چکیے جی سی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب. یہ جس بھائی نے بولا نا جی سی احمد قادیانی سے ذرا لائن پہ بھیج لینا. جی جی آپ ہاں جی، مرزا غلام احمد میں قادیانی کو ਉਹਦੀ کیا ਭੈਣ ਨੂੰ سمجھتے ہیں؟ ਦੰਨ ਦੇਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ اچھا ਦੇਣਾ ਇਸ اچھا، ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜੇ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਫਰ. نہیں بھائی گال نہیں کڈی دی ہوندی، گال نہیں کڈی دی. اچھا جی، اور کوئی کلر ہے تو آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. اچھا تو بات یہ ہو رہی تھی جناب، اجاز المسیح کا ٹائٹل پیج پڑھ کے دیکھ لو، ایک لائن وہ ٹھیک نہیں جی ہے واللہ. اتنی اغلاط، اتنی اغلاط. ایچ ڈی صاحب دوبارہ آ گئے. جی جناب ایچ ڈی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، یہ آپ نے بولا تھا کہ مربی قادیانی ایچ ڈی صاحب آئیں، یہ مربی قادیانی کون ہوتا ہے؟ جو مرزا غلام قادیانی کو خنزیر نہیں مانتا. میں سب سے پہلی بات، میں یہاں پہ کسی سے فتویٰ لینے نہیں آیا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں مرزے اور اس کے ماننے والوں پر اور اس کے لیے جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت یا نرمی ہے ان پہ، ان کے والدین میں سب پہ لعنت کرتا ہوں اور ان کو میں اعلان کافر مانتا ہوں. نہیں نہیں، مرزے کی بات نہیں ہم کر رہے، مرزا غلام احمد. قادیانی غلام احمد قادیانی حرامی دلہ، قادیانیوں کا سردار، ربوے والے جتنے بھی ہیں سب، مجھے پتہ ہے قادیانیوں کا یار. ہاں میں تو الحمدللہ مسلم ہوں، میں الحمدللہ، میں یہ کون سی بات ہے؟ کیسے آپ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم صرف قادیانی ربیہ ہو؟ والے، صرف ربیہ والے، وہ لاہوریوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سے لوری؟ اور وہ گرین والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جماعت اصلاح پسند جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سے ہیں یہ؟ کون ہیں آپ نے تو لوگ؟ مقید کر دی نا اپنی بات، آپ نے کہا جی صرف ربیہ والے جو ہے نا ان کے اوپر لعنت. اور یار میری بات تو سنو، یہ جو میری باقی بات کے سنو، قادیانی گروہ بچے ہیں ان کے بارے میری میں کیا بات سنو، تاثرات ہیں آپ کے؟ میری یہ اتنا مجھے نہیں پتا، واللہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کون سے نام لے رہے ہو، لیکن میں نے سب سے پہلے کہا ہے جس کے دل میں مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ذرا سی بھی نرمی ہے نا، میں اس پہ بھی لعنت اور اس کو بھی کافر سمجھتا ہوں. اگلی بات کریں آپ. اس میں یہ لوری اور یہ ربوے اور یہ سلومی اور یہ سلومی یہ سب نہیں آتے ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا بات سنیے، آپ ناراض ہو رہے ہیں شاید. نہیں میں اچھا ناراض ہوں، جی آپ نے مجھے اس کی جماعت کے ساتھ ملایا ہے جو دجال ہے یار. مجھے تو، میں تو پیرو تھلو سے ضمیر نکل گئی ہے. میں تو
अच्छा रुकें तो, आप अभी फरमा रहे थे कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में रत्ती बराबर भी उसकी हिमायत करे, दिफा करे, मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूँ, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिर्ज़ा जूनियर जेल में जो है, ये इसका जो बेटा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? कौन सा मिर्जा जूनियर जेल? ये सामने तस्वीर लगी हुई है बाप बेटे की। ये ये इनका बेटा है? जी जी। अगर ये इनका बेटा है तो मैं इस पे भी लानत करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्योंकि आपने अभी फरमाया था ना, जो भी इसका दिफा करे, तो ये मिर्ज़ा जूनियर जेल में तो बात बात पे दिफा करता है अपने बाप का और अपने बाप के अकीदे का। तो चलो अच्छी बात है, मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। आपका नाम क्या है HD साहब? मेरा नाम HD समझ लिया, मेरा मुख्तार अहमद नाम है, लेकिन मैं शाह जी आपको बहुत वो करता था, मतलब दिल से। मुख्तार अहमद, अब इतना बड़ा, इतना प्यारा नाम है, तो अच्छा नाम नाम तो है, लेकिन ये वो मेरी ID रिपोर्ट लग जाती है। मैं TLP के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरी ID पे रिपोर्टें लगती हैं, इतनी कोई हिसाब ही नहीं किया जाता। अच्छी बात है। बाबा जी की तकरीर लगानी होती है, वो आजकल वो डिबेट चल रही है TLP और PTI की, वो थोड़ी सी पोस्ट कर दो तो वो रिपोर्टें मार देते हैं। इसलिए मैं जो है इस ID पे हूँ। मैं तो कसम से मुझे समझ नहीं आ रही यार। मैं अभी ड्यूटी ऑन की है, मैंने जो है वो टिकटॉक पे देखा है, आप मुफ्ती मुबशर शाह साहब जो है वो लाइव है, मैं आया हूँ इधर, तो हाजी कादियानी साहब, रबवी साहब, और वो ऊपर मैंने आपको कादियानी कहा है? जी HD मुरब्बी कादियानी साहब कॉल पे आए जरा। यानी मतलब ये कि आपने कोई कमेंट ऐसा किया होगा ना जी, जिससे हमें ये पता चला है। कौन सा कमेंट किया है जी? मेरा कमेंट बताएं जरा। अच्छा, ये GC अहमद आपकी ID है? कौन सी? GC अहमद की ID? GC ये जो अभी मुझसे पहले वो आया था भाई। नहीं यार, ये नीचे सेम आइकन है और नीचे GC अहमद लिखा हुआ है, तो लगा शाहजी को यही लगा है कि वो HD नहीं है। देखें, वो सेम टू सेम बिल्कुल वो एक तरह की ID है ना, तो मैं यही समझा कि शायद वो शाह जी उसने कमेंट किया था, GC अहमद ने कमेंट किया है कि नशा कम किया करो भाई मुफ्ती साहब, और इसने उस बात पे हंसने वाला इमोजी दिया है, इस बात पे हंसा है, तो इसलिए शाह जी ने आपको ऐसा बोला था HD भाई। नहीं तो हासा निकल गया अगर, तो इसमें क्या मतलब वो मैं तो भाई मेरी बात सुनो, आपने अभी खुद बोला कि उनके लिए जो दिल में ज़रा भी नरमी रखे मैं उस पर लानत डालता हूँ, तो हम तो यहाँ पे उनके लिए दिल में कोई ज़रा भी नरमी नहीं रखते। वो मुफ्ती साहब जो काम कर रहे हैं ख़त्म नबूवत का, उसके ऊपर वो जनाब उनके मुफ्ती साहब को बातें सुना रहा है और आप उसकी बात पे हंस रहे हो। कौन बातें सुना रहा है? ये जनाब स्क्रीन शॉट में लेता हूँ। शाह जी मेरी स्क्रीन ज़रा बड़ी करिएगा, इसको मैं दिखाता हूँ इसने क्या, ये एक सेकंड रुकिए ज़रा। कौन सी बात? राजपूत भाई, बात लंबी हो जाएगी ऐसे। नहीं बात वो लंबी हो ना। नहीं उस्मान करने दें उनको। भाई हमने अगर आपको कादियानी मुरब्बी कहा है, ऐसे मुंह उठा के तो नहीं कर दिया है ना? आपका कोई कमेंट या कोई ऐसी चीज देखी है तो आपको कहा? कमेंट में हमें तो नहीं पता कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। यहाँ फेक आइडियाँ बना के लोग आते हैं, हमें क्या पता। हमने तो अगले के कमेंट से ये अंदाज़ा लगाना होता है, या उसकी हरकतों सकनत से अंदाज़ा लगाना होता है कि बंदा ये क्या है। नहीं, हरकत और सकनात, अगर एक बंदा है वो यहाँ पे लतीफ़ा पढ़ रहा है, कोई ऐसा लतीफ़ा है किसी के बारे में है, तो उसको हासा निकल आता है, तो वो कादियानी हो गया शाह जी? नहीं, वो ये तो दलील नहीं है ना। अच्छा HD साहब ਮੈਨੂੰ ये देखिए ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ DP ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ? अच्छा, ये इन्होंने शुएब साहब इन्होंने लाई है, HD साहब ने? जी HD साहब ने लाई है। अच्छा, जरा ओदी भी स्क्रीनशॉट ले आ जरा जल्दी राजपूत। लो जी, लो स्क्रीनशॉट लो। वो केड़ा स्क्रीनशॉट तुसी लेना चाहते हो? ਵੇਖਿਓ ਜੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ TLP ਦਾ ਵਾਂ,
ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, बच्चे ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਈ ਜਾਓ। लॉलीपॉप तो आपने उम्मत को दिया हुआ है जी, वो बात ना करें। आप जो है वो दलील के साथ में बात करें। अब देखा ना असल बंदा सामने आ रहा है ना, ऐसा ऐसा है ना। अभी तो मुफ्ती साहब और अभी देखें क्या हो गया ना। सही ऐसे ही बंदा सामने मैंने आता है। आपको गाल दी है या आप पे फतवा लगाया है? ये जो आपने बोला है वो वीडियो इधर चलाएं, उसमें वो बोल क्या रहा है? वो वीडियो चलाएं ना इधर। नहीं उसमें वो अच्छा जी, होगा ये- कि भाई कादियानियों की मरज़इयों की जो माँ है उसके 4 शोहर उनको मिलेंगे, ये कहा होगा। ये वाली लगाई हो नहीं है आपने, ऐसा ही है। नहीं कादियानियों की जो माँ है उसको 4 शोहर नहीं कादियानियों की माँ नहीं, मरज़इयों की माँ को 4 शोहर मिलेंगे, यानी मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के जो फॉलोअर्स हैं उनकी माँ को 4 शोहर मिलेंगे। ये वाली वीडियो लगाई है आपने। देखें शाह जी, आपने सुन्नत रसूल रखी है और सैयद ज़ादे और ये गुफ्तगू कैसी नहीं है? भाई ये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी ने कहा है, ये स्टेटमेंट दी है, क्या आप नहीं मानते? क्या क्या मतलब? ये नहीं, आप ये स्टेटमेंट नहीं मानते क्या उसकी? ये तो 4 शोहर तो उनके हैं जी जो मानते हैं उसको, क्या नाम है। फिर मैं आपके साथ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई तुमने सुन्नत रसूल रखी हुई है तो गलत बात कर रहे हो, ये गलत बात तो नहीं है। मैंने आप देखे मैंने तुमने अच्छा नहीं शाह कहा, जी, मैंने ये आपने- वीडियो इसने वो लगाई हुई है जिसमें वो हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के बारे में बकवास उसने की थी ना बहुत ज्यादा, और फिर उसने टोंटे मारी थी अहले सुन्नत को। इसने वो वीडियो लगाई हुई है अपनी उस पे वॉल पर, उस्मान वो भी मैंने डाउनलोड करके मुशावरती पैनल में शेयर कर दी है। वो आप इस उस्मान। तरह के डाउनलोड करके वो अपना पाक आर्मी या ये को दे दें। साहिब मोहतरम शेर मैं इधर से सुना देता हूँ, जो इसमें वीडियो लगाई है ना, मैं इधर से सुना देता हूँ। सुनायो जे ते उमर बंदे नाल मुकालमा तुसी करोगे भाई, होर कोई नहीं बोलेगा। जी चलो ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। वीडियो सुनाएंगे और इस पे फिर गुफ्तगू करेंगे जो वीडियो लगी। जी बिल्कुल, वो आपके साथ ना हमारे उमर भाई हैं, तालिब इल्म है, तो ये करेंगे गुफ्तगू आपसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी उमर भाई कीजिएगा बात और पता चल जाएगा कि भाई जरा वीडियो सपोर्टर लगाए ना, इन्होंने वीडियो चलाएं जी। ये सपोर्टर हैं और मिर्जा इंजीनियर की वीडियो लगा के पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं दुनिया के किनारों मेरी किनारों बात पर। सुने जी, मेरी बात सुने। सबसे पहले आप वीडियो चलाएं ना, उस वीडियो में वो बोल क्या रहा है। अगर वो भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर उसने एक लफ्ज भी गुस्ताखी का बोला है ना, तो मैं उस पे लानत करूंगा। मेरी जो वीडियो है वो आप चलाएं इधर। माइक म्यूट करें, अपना आवाज डबल हो रही है। एक मिनट माइक म्यूट कीजिएगा। अच्छा, जब तक उमर भाई चलाते हैं वीडियो, एक बात करूँगा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह TLP से हूँ, सही है। और हमें पता है कि जो हमारे उलमाए और जो हमारे यहाँ पे जितने भी साथी हमारे इस मुहिम पे काम कर रहे हैं, उनका अदब और उनका एहतराम कैसे करना है। तो आप वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है और आप उस पर हंस रहे हो और कह रहे हो जी मैं TLP से हूँ। ऐसे किसी भी जमात का नाम लगा के लबादा ओढ़ के यहाँ पे आके जनाब आप बदनामी कर रहे हो। बिल्कुल राजपूत बजा फरमाया, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। जी उस्मान वीडियो चलाएंगे कि नहीं? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੀ। नहीं जी मैं शाह जी बैक वीडियो चलाएं शाह जी, वीडियो चलाएं आप प्लीज वीडियो चलाएं प्लीज। जी उस्मान भाई चलाएं। और मैं बताता हूँ कहाँ इसने बकवास की हुई है मिर्जा जूनियर ने। शाह जी वैसे वो ग्रुप में भी मैंने शेयर कर दिया उसमें मुशावरती पैनल में। मेरी वीडियो जो है अभी वो मेरे जो पास है वो लैपटॉप चलाएं, नहीं है जी। HD साहब थोड़ा सा रुकिए, हमारी मैनेजमेंट का थोड़ा सा मसला बन रहा है। उमूमी तौर पे मेरा लैपटॉप जब खुला होता है तो मैं डिबेट करता हूँ। अभी मेरे पास लैपटॉप खुला नहीं है, तो आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जी, आप नहीं, आप थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें जब तक आपकी वो वीडियो यहाँ पे नहीं सुनाई मेरे पास जाती। इतना टाइम नहीं है, मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं आपको खुद बता जी, देता आप हूँ चले कि उसमें जाएं, वो कोई क्या मसला कह रहा नहीं, है। आप चले जाएं। चलता नहीं हूँ, मैं बात खत्म करके जी जाऊँ। उस्मान
जी जी उस्ताद मोहतरम, वीडियो चलाने लगा हूँ मैं, वीडियो चलाने लगा हूँ, ये सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना उस्ताद मोहतरम? ये आवाज़ आ रही है। ये वीडियो सुन। हाँ, ताकि जो तुम स्कूल जाओ, हाय 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 हाय, कितना क्लिप है वायरल होया फिर इन्होंने ये गल समझ आती है। हाँ, तेरे बच्चे जब स्कूल जाए तो लोग कहें यजीद आ गया, और छुट्टी के वक्त जब तू जाने के लिए जाए तो कहें यजीद अब्बा आ गया। हाँ, बचाओ अपने बाबे को, अपने नाम रखो। जी उस्ताद मोहतरम, अब ये जो जितने उस्मान भाई आप रुक एक जाए, मिनट, मुझे करने दें बात। जी जी ठीक हो अब ये गया। जो इसने टॉन्ट मारी है ना, टॉन्ट, कि जब तुम जाओ तो तुम्हें कहा जाए कि ये यजीद का अब्बा आ गया, बचाओ अपने बाबे को, ये किस बाबे की बात हो रही है, ये मुझे बता दें। ये कौन से बाबे को इसने टॉन्ट मारी है, मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। जी एचडी साहब। जी 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 जी, इसमें आप मुझे ये बताएं टॉपिक क्या है, इस वीडियो में टॉपिक क्या है, आपको पता है इस चीज का? सबसे मैंने पहली आपसे बात छोटा सा कि सवाल मेरी पूछा बात है, सुने, ये मैं किस सवाल बाबे के बारे में जो कहा है, है, मैं वीडियो किस बाबे मैं के बारे में इसने कहा है कि बचाओ अपने बाबे को? मैं हर उस मुझे बाबे सिर्फ को इस बात का लानत जवाब भेजता चाहिए। हूं। मेरी बात सुने आप, मैं मुख्तसर मैं भी जवाब ये देता हूं और ज़ीर पलीद लईन जो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले पे आया, उस पर लानत भेजता हूं, लेकिन ये इसने किस बाबे के बारे में कहा है? बात खत्म, मुझे उस बात बाबे का खत्म हो नाम गई बता है। दो। वो यजीद की उसने बात हो किस रही है बाबे के मेरे बारे में कहा है कि बाबे बचाओ अपने, इस बाबे को बचा लो अपने? बचाओ। किस बाबे के बारे में कहा है, इसका जवाब दो मुझे। देखें आप जो है ना गर्मी कर रहे हैं, ठीक है? मेरी बात सुने। तो आपने भाई मैं यजीद पे गर्मी नहीं लानत कर रहा, किया। मुझे इस बात का यार, जवाब दो ना, जो बात- पूछ रहा हूँ, टू द मेरी पॉइंट बात तो दो। सुनो ना यार, मेरी बात तो सुनो ना, मुझे बोलने दोगे तो मैं जवाब दूंगा ना भाई। जी बोलो जल्दी। वहां पे बात हो रही है कि यजीद नाम रखना जायज है या नाजायज है, ठीक है? उस पे उन्होंने कहा कि रखो ना फिर अपने बच्चों दे ना, जो बच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ अब्बा आ गया है, बचाओ अपने बाबे। ये किसने ये स्टेटमेंट दी है कि यजीद रजी अल्लाह तआला के नारा किसने लगाया? यजीद आप का मुझे बताएं। अब्बा आपके मिर्जा साहब किस बुजुर्ग हस्ती के बारे में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? यार जरा ये भी यजीद मुझे अगर बता आपका दीजिए। नाम है तो आपके अब्बा मुआविया बन गए हैं रजी अल्लाह तआला यजीद अन्हु। का अब्बा किस शख्सियत के बारे में मिर्जा साहब लफ्ज इस्तेमाल मैं करते हैं? आपको बताता हूँ, मुझे उसका मैं नाम आपको बताएं। बताता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे का नाम यजीद रखूं, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो मैं मुआविया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला बन जाऊंगा माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफ्र, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। कैसे यार बंदे हैं ये? मतलब मुआविया यानी बनना आपके नजदीक कुफर मुआविया है। बन जाना कुफर है? देखें जी, वो सहाबी ये रसूल है। नहीं, आपके नजदीक मुआविया बन जाना कुफर है, इसलिए आपने अभी ये स्टेटमेंट दी ना आपने अभी। यार शाहजी या आप अपने शागिर्द को बोलें कि वो दलील से बात करें। जी मरज़ई साहब एक तरीकाकार है। मरज़ई साहब हमारा गुफ्तगू का माइक ज़रा म्यूट करें आप अपना भी, तो हर चीज़ खुल के सामने आ चुकी है। तो ऐसा है कि बारी बारी बात होगी, 1 मिनट आप ले लें, 1 मिनट ये ले लें, बारी बारी बात करते हैं, समझ आई कि नहीं? तो अभी माइक म्यूट रखें आप, इतने तावले ना हो। इधर ही हैं हम, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। जी उमर भाई, सबसे पहले आप बात कीजिए। कोई टाइम को कंट्रोल कर सकता है भाई? स्टॉप वॉच लगा सकता है? उस्मान, ये काम कर सकते हो? सर मोहतरम, मैं साथ साथ ना वो हवाले निकाल रहा हूँ, मुझे मेरा ध्यान अच्छा चलें, राजपूत ये स्टॉप वॉच चला सकते हो? इसी हवाले से मैं ना वो हवाले निकाल राजपूत स्टॉप वॉच चला सकते हो? गुज्जर साहब की आईडी से स्टॉप वॉच चला सकते हैं आप? अच्छा जी, मैं ड्राइव कर रहा हूँ रात के टाइम मात्र। जी ठीक हो गया। जी मैं घड़ी शुएब देख लेता मनशा, हूँ, घड़ी देख लेता हूँ, मैं टाइम चेक करके बता दूंगा, मेरे सामने सिस्टम नहीं इंज नहीं ना वेख्या जाता। घड़ी से टाइम देख फॉलोवर नहीं स्टॉप पूरे वॉच सब फॉलोवर पूरे नहीं है, लेकिन अगर मैं चला सकता था, कैमरा ऑन नहीं होना। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨੈਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ? ਤੇ ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, नहीं तो मैं लैपटॉप तो बगैर डिबेट करता ही नहीं, बराड ओपन ही नहीं करता। तो अज बस गलती हो गई है ना।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕਰੀਏ ਮੈਨੇਜ ਬਾਈ? क्या जी साहब सॉरी, चौदह वो जब चौदह बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा वो नहीं बोलेंगे। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक सवाल है कि परवेज जो गुस्ताख था, मलऊन था, मुनकर हदीस था, उसके बारे में ये सुनिएगा क्या कहता है। इसको सवाल है मिर्जा इंजीनियर को। मैं क्योंकि मेरी ना जॉब है, मैंने निकलना है, मैं कुछ हवाला देना चाहता हूँ। ये देखिएगा 56 इसकी पब्लिक क्वेश्चन एंड सेशन है। भाई मेरा नाम परवेज है, कहते हैं गुस्ताखे रसूल था जी, वो था तो इससे क्या फर्क पड़ गया मेरे भाई, ऑन कर लो, नाम इसके पे है, कुछ भी नहीं। नाम का अगर मतलब गलत हो ना, कुफरिया हो, शिरकिया हो, ठीक है, फिर है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। नामों से क्या होता है मेरे भाई? अच्छा ठीक हो गया। अब इसने एक वीडियो बनाई है जिसमें कहता है कि मुआविया, कहता है मैं ते अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुआविया नाम ही ना रखा। अब ना यजीद का माना कुफरिया, ना सैयदना अमीर मुआविया रजी ताला अन्हु को माना कुफरिया। परवेज जो गुस्ताख है, ये कादियानी लड़ी, गुस्ताखों की लड़ी, वो कहता है नाम रखो, नामा जी की पिया है। लेकिन जब भी आएगा नाम सैयदना अमीर मुआविया रजी ताला अन्हु का, वो क्लिप चलाता हूँ, कहता है नाम नहीं रखना उसका, उनका नाम नहीं रखना। और जब ये कहता नहीं तुसी यजीद नाम रखो, तो पता परवेज के चले। हवाले से उस्मान भाई, यहाँ मैं आपकी मालूमात में भी एक चीज और ऐड कर दूं। परवेज वो है जो खुसरो परवेज था, जिसने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का भेजा हुआ खत जो है ना, उसको चाक कर दिया था, उसकी तौहीन की थी। एक परवेज वो भी है जी। उमर भाई ये दूसरा क्लिप सुनिएगा, फिर मैं निकलना है, ये भी फिर मैं निकलना है, तो आप फिर मर्ज़ई से बात कीजिएगा। ये सुनिएगा। नाम अबा यजीद, सवाल के बात करो, मर्ज़ई तुम्हारा बाप होगा। ਅਸੀਂ आज ना रखने से तैयार नहीं है, ठीक है जी, हम तो मुआविया नाम दोबारा से सुने, बीच में अबा यजीद, वाह वाह वाह, ਅਸੀਂ आज ना रखने से तैयार नहीं है, ठीक है जी, हम तो मुआविया नाम रखने के लिए तैयार नहीं है, तुम लोगों ने कुनियत रखी हुई है अबू यजीद। जी परवेज गुस्ताख का नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं हम तो मुआविया रजी ताला अन्हु का नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। ये इसका है रिप्लाई टू बरेलवी डॉक्टर अशरफ अली जलाली ऑन कशफुल महजूब। ये 5 मंथ अगो इसका क्लिप है, जाके सुन लिए। 35 मिनट के ऊपर जाके सुन ले। और पहले मैंने बताया 56। इसके ऊपर मेरे पास 3-4 और वीडियोस हैं जिसके ऊपर वो कहता है कि मुआविया रजी ताला अन्हु, कहता है मुझे तो नाम भी नहीं पसंद है, और जो रजी ताला अन्हु ना, मैं दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ, दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ। लेकिन जब कोई खबीस मलऊन, कोई भी, ये पॉडकास्ट करने वाले भी कुछ मलऊन हैं जो इसके पास चले जाते हैं और जाहिल तरीन इसके सवालात करने लग जाते हैं, वो भी जाहिल और वो भी जाहिलों का इमाम। तो वो जब सैयदना मेरे मुआविया रजी ताला अन्हु को नाम लेना, तो बढ़ के कहता है आगे से रजी ताला अन्हु बढ़ के कहेगा। जैसे कादियानियों के पास जाए ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम लेना, तो हमारे दरूद पढ़ने से पहले ही आगे से कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो खबीस मलून है, मुझे मौका तो दिया कहता है कि जाएगा हम, बोलने का। एक मिनट, मैंने हवाले रख दिए हैं उमर भाई, मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। अब मैंने हवाले रख दिए हैं, मैंने निकलना है जॉब की तरफ। हवाले आगे छोड़े आप बात कीजिए उमर भाई। मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये जो चिश्ती रसूल है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बताते हैं इस पे मर्ज़ई बात जी, आपको करते हैं, सारा कुछ बिल्कुल बताइए। बात करते हैं। उस्मान भाई छोड़ दें, अब छोड़ दें, मैं करता हूँ इससे बात। अब उस्मान छोड़ दें। अब खामोश यार रहिए बस। चलिए, मेरे पास- ये चाहता है मैं जॉब पे ना ही जाऊं। यार उस्मान भाई क्यों टेंशन लेंदे हो तुसी यार? सबर ते करो, वो भी यदि खारिश ठंडी कर दांगे, कादी टेंशन है? मेरी आवाज आ रही है? ठंडी करें ना जी। मेरी आवाज आ रही जी, है? उस्ताद। हेलो अच्छा ਹੁਣ ਨਾ डिबेट होएगी। मैं टाइम मैनेज करना चाह रहा था, लेकिन टाइम मैनेज हो नहीं रहा, कोई ऐसी सोर्स नहीं है। तो बकाया ना सारे दोस्त ना थल्ले बवो भाई, तो इंतज़ार करो, ठीक है। 1 to 1 2 बंदियां दी गुफ्तगू होएगी, इधरों मरज़ई साहब ने, इधरों उमर साहब ने, ठीक है। शाहजी जुबान संभाल के बात करें आप, प्लीज प्लीज प्लीज। खामोश Kindly मेरी खामोश request है। भाई, खामोश। मरज़ई जी चुप भाई, चुप भाई, चुप। मर्ज़ई आपका बाप अभी है, तो आपका पार्टी- दादा है, हरामजादे, कुत्ते, दल्ले, कमीने, कंजर के बच्चे। मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, तू आगे से बकबक करते जा रहा है। यही तो तुम्हारी इल्मियत थी, यही तुम्हारी ये इल्मियत तुम्हारा थी। TLP वाला होना है कि तुम्हें चिश्ती रसूलुल्लाह की तकलीफ मैं छिड़ी। लानत भेजता हूं जब यार, वो नीचे उस तुम्हारे भाई ने पे भी और मैसेज किया तो यजीद पे भी और यजीद तुम्हें तब के मिर्चे पे भी छिड़ी। तुमने जो मेरा लन और पुटना है, वो पुट ले आके। ये लो खंजीर शाह के जी बच्चे। राफजी है, पक्का कट्टर राफजी है रानी, तेरी माँ पे आके मैं चढ़ता हूँ, ये पक्का कट्टर राफजी गांडू है। का बच्चा। ये अंदर दी मिर्च निकली है दी बाहर।
ਇਹ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ बैठे ने बेगैरत। लाख दी लानत भाई। तो ये खंजीर हैं ये लोग, ये देख लें। सबसे पहले इसने TLP का लिबादा उड़ा, झूठ और फ्रॉड किया, सारी दुनिया देख रही है, अभी रिकॉर्डिंग पे चल रही है ये गुफ्तगू, समझ रहे हैं कि नहीं? तो TLP को बदनाम करने के लिए ये कैसी कैसी साजिशें कर रहे हैं ये लोग, कादियानी और मरज़ई। ये देखिए ये बंदा कट्टर राफजी है, कादियानी है, मरज़ई है, और लिबादा वो TLP का ओढ़ के आया और सिर्फ बदनाम करने के लिए, और कुछ भी नहीं। और सारी दुनिया ने ये एक मिनट उमर, एक मिनट यार, रोकते जा यार। तो सारी दुनिया ने देख लिया ना, सारी दुनिया ने देख लिया कि TLP को हवा इधर की चले ये TLP को, मैं TLP का नुमाइंदा नहीं हूँ, समझ आई कि नहीं? मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा किसी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन यह है कि हक ही होता है। जहाँ पर हक नहीं होगा और हक को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम ज़रूर उठेंगे। तो आप हजरात ने ये मुलाहजा कर लिया कि किस तरीके से TLP के जो दुश्मन लोग हैं ये कादियानी हैं, राफजी हैं और मरज़ई लोग हैं। जी उमर भाई अब आप बोल सकते हैं। और शाह जी इसको मैंने जिस बात पे पकड़ा था ना थोड़ी देर पहले गुफ्तगू के दौरान भी, उस वक्त भी इस बेगैरत ने ये कहा था कि मुआविया नाम रखना मुआज़ल्ला कुफर से उसको तशबीह दी थी इसने, मुआविया नाम रखने को, नकले कुफर कुफर नबाशत इसने स्टेटमेंट यूज की थी, यानी इसके नजदीक मुआविया नाम रखना वो कुफर है मुआज़ल्ला अज़्ज़ा वजल। ये वो राफजी है, ये वो काले कलोटे खटमल है ना जिनको सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से तकलीफ है, और ये हजरत हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा जानते हैं कि मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सैयद, मेरे इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं पता था कि हजरत मुआविया कैसे है, और उन्होंने खिलाफत का जो पूरा भार था, पूरी जिम्मेदारी उनको सौंप दी थी, और अपने नाना जान मेरे आका मेरे सरकार मक्की मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के उस हुक्म के मुताबिक जिसमें आपने फरमाया था, मफहूम उसका है कि ये मेरा बेटा सैयद है और मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों के बीच में सुलह करवाएगा। ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा जानते हैं, और ये इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज्यादा जानते हैं। गैब का इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास नहीं, इनके पास आ गया कि इनको गैब की खबर मिल गई है कि वो कैसे थे और कैसे नहीं थे। हम अहले सुन्नत डंके की चोट पे ये बात कहते हैं कि जिससे हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की उससे हमारी कोई जंग नहीं, और जिससे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग की उससे हमारी कोई सुलह नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काले कलोटे खटमल कुत्ते उठ के आके जो है ना वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को भौंकेंगे, ये कोई लिहाज किसी का नहीं होगा। इस गलत फहमी में ना रहना, वरना फिर मैं वो भी तुम्हारी किताबें खोलूंगा कि जहां तुमने अहले बैत के बारे में क्या बकवासियात लिखी है ना वो भी खोल के दुनिया को दिखाऊंगा। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਿਬ ਬਣੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਆ ਫਜ਼ੀਲਤ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु दे, हजरत मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम दे मर्तबे दे, वो भी मैं खोल के इबारतां दिखावांगा कि जिना नु तुसां उन्हां दे मकाम दे बराबर कीते है। कुरान नु तुसी नाकस मानदे हो, नबूवत तुसी मानदे हो मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम वाला नहीं सी। जे नहीं छेड़ देना तो कंट्रोल च रहो। ਤੇ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ। जी जी उस्ताद मोहतरम आप बात करें। जी ठीक हो गया। अच्छा चलें जी, नए कॉलर को मैं अब उठाने लगा हूँ बारी बारी। जी जनाब, बेबे साहब, हेलो।
जी बेबे साहब, बेबी हैं बेबे हैं, कौन है, बोलें तो सही। चलो, साद अली साहब। जी जनाब। हाँ भी यजीद के मानने वालों, जी सुनाओ जी क्या हाल है यजीदियो? यजीद पर तो हम लानत भेजते हैं, ये सारे ज़रा फिर उसके बताइएगा। अब्बे को डिफेंड क्यों करते हो? इधर देखो, अगर तो तुमने अपनी बाजी पेश करनी है और तो वो वैसे सीधी तरीके से पेश कर दो। कोई तुम्हें मौलवी नहीं मिल रहा, कोई सुन्नी नहीं मिल रहा, तो वो ठीक है, वो हम लेने को तैयार हैं, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन किसी सहाबी के बारे में रत्ती बराबर भी कोई तुम लोगों ने अगर की ना गुस्ताखी, तो वो फिर हम खुद निकाल लाएंगे तुम्हारी बाजी को, तुम पेश करो या ना करो। समझ आए कि नहीं? अच्छा जी, अगले कॉलर को ले लेते हैं। ईशा जी कुछ बोल सकता हूँ, इजाज़त है? जी ये नई कॉलर आए हैं जी, काशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मुफ्ती मुशर्रफ साहब? जी शुक्र है अल्लाह दा। सर ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਏ? ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ, ਰਾਫਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਦੱਸੋ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਹੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਦੀ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ ਨਾ ਚੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। अच्छा शाह जी, ਬਰਾੜ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਫੁੱਦੂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੂਜੇ ਸੁੰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ, ਖੰਜ਼ੀਰ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਤੇ ਆਓ। ਐਡਮਿਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਮਰ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। जी उस्ताद मोहतरम, ये मिर्जा जूनियर साहब की जो वीडियो जिसका हिस्सा लगा हुआ था, इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये जो ताना मारता ना बार बार, ये हजरत बायजीद बिस्तामी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मारता होता है कि उनकी कुनियत है बायजीद। पहले लेना है अपनी गल छड़ के नवे कलर नु पहले लेना है। जी जी पाकिस्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? बाकी दोस्त सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब से गुजारिश करने के लिए आया हूँ। हजरत पहले मुझे ये बता दें, ये जो दो शक्लें लगी हुई हैं तस्वीर में, इनके बारे में आपका सुअर के बच्चे, ये दोनों सुअर के बच्चे हैं। ये इनके तो बापों पे भी शक है मुझे कि वो भी पता नहीं इंसान के बच्चे थे कि गधे के थे।
जी आप अर्ज करिएगा। मुफ्ती साहब से बात हो सकती है ना मेरी? सुन रहे हैं मुफ्ती जी साहब? जी सुन रहे हैं हम आपकी बात। मुफ्ती साहब आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी, ये काले खंजीर, ये नरजिस की औलादें, ये खत्म नब्वत के काम में भी घुसे हुए हैं और ये इन्होंने एक फसाद मचा के रखा हुआ है और एक मकसद, एक ऐसी फितना बना के रखा हुआ है खत्म नब्वत के काम को। तो इनका कोई इलाज नहीं है कि इन खंजीरों को इस काम से बाहर निकाला जाए, इनको अपनी ब्रॉड्स पे आने से रोका जाए? कोई इसका हल नहीं जी, कोई हल नहीं है। असल में इनकी माओ से गलतियां हो गई हैं। मुते की पैदावार वो जम जम के सुटे ने तो वो आके फिर बराडां दे बकवासियात करते हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ। समझ आई कि नहीं? तो अब इसका कोई मुते का कोई इलाज तो नहीं है ना, या तो कोई मुते का कोई इलाज है तो वो बता दें। वो जम जम के सुटे ने इन्होंने पुरल। अच्छा शाह जी ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਤਾ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾ ਕਰਨੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਝ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੇ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਤੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੇ, बस चीज का सबूत देता है पे। जी मुफ्ती साहब मैं बोलूं कुछ? जी बोलिए। मैं असल में थोड़ा सा इस हवाले से जो है ना 2-3 दिन से डिसहार्टेड हुआ हूँ कि ये हमारे जो खत्म नब्वत पे जो काम कर रहे हैं ना, ये बाज़ औक़ात है तो कुछ तो इनमें अहले तशी है ही है, कुछ नहीं भी है। तो वो भी जो ना वो 12 इमामों वाला जो अकीदा है ना वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम तो मानते हैं 12। वो यकीन करेंगे अभी 2 दिन पहले मैंने यहाँ तक सुना कि वो खुमैनी को भी इमाम मान रहे हैं, यानी 13वां इमाम उसको भी गिन रहे हैं। तो थोड़ी सी इस हवाले से अवेयरनेस दीजिए इन लोगों को। पाकिस्तानी साहब ये ब्राड हमारी इस मौजू पे नहीं है, हम तो सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ा जूनियर जेल में ये जो बाप बैठे हैं इनके बारे में ब्राड करते हैं। वो वैसे बीच में राफसी आ गया था खंजीर, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कलाम हमने कर दिया है, तो मुस्तकिल हमारा ये उन्वान नहीं है जी। चले बहरहाल कोशिश ये जरूर कीजिएगा, अगर अंडरग्राउंड पे किसी से राब्ता है ना तो थोड़ी सी अवेयरनेस देने की कोशिश कीजिएगा। हमारा किसी से कोई अंडरवेयर कोई नहीं है। हाँ जी, तो हम जो कुछ है ना हम सामने है खुले हुए। तो वो आज देख लेना बजा डाली है हमने राफसियों की भी, लेकिन जी मेरा मौजू ही नहीं है ये। हाँ जी, जो हम हैं वो खुल के हैं। हाँ जी चलें ठीक है मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ते जिन्ने ना पुत्र मैं काल चक्कन लगा वां, जिन्ने किसी एक सहाबी दे बारे भी रत्ती बराबर भी कोई इधर उधर की गल की ना, ते ओ मुफ्ती ने डायरैक्ट ओदी मां ते भैन दे उत्ते चढ़ जाना जे, फिर ना क्या जे मैं इजाजत भी नहीं लैनी, रत्ती बराबर इजाजत कोई नहीं मेरे कोलों, ते मैं दोवां नूं एक लैन च खड़ा कर लेना, फिर ना क्या जे की कर छड़िया बई। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਮਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਲਰ ਹੈ। महमूद खान साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम जी मैं महमूद खान रज़वी हूँ, मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आपकी दिफा में बस ऐसे बैठना चाह रहा था ब्रॉड में। मैं खुद एक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हूँ मैं, और मैं हुजूर ताज शरीयत। अगले कालर को लेते हैं जी। मुसलमान कोई काल ना करे भाई, कोई मुसलमान काल ना करे सानू, कादियानी ते मरदई आओ बस सामने। कोई मुसलमान काल ना करे, कालां तो लथ जाओ जल्दी करो, फिर मैं काल चक्कन लगा। कालां जेड़ा भी कोई मुसलमान है वे वो काल तो लथ जाए,
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਰ ਆਪਸੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ। जी जोहेब अली साहब, जोहेब साहब, डबल टैप करो भाई, डबल टैप करो, शेयर करो भाई, जल्दी करो। जी एजाज साहब, एजाज साहब बोलिए। ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੂੰ जी जिले शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कोई मेरी मदद नहीं है आपसे, सिर्फ एक बात करूंगा, अगर आप गुस्सा न कर सकता हूँ। पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा इन दोनों शख्सियात के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, जो दो शक्लें आपको नजर आ रही हैं सामने। लानत लानत भाई, लानत। बस मेरी एक बात का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। हेलो जी जी बोलिए भाईजान। आप माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह दीन इस्लाम की बातें कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ना ये मुफ्ती साहब की और आपकी ने मेरे को एक चीज है ना जो बहुत डिसार्ट की है कि यार आप देखें कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी की माँ बहन ऐसे गालियां नहीं दी थी जैसे कि इधर ब्रॉड के ऊपर आप लोग गालियां दे रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, चलो जी अगला कॉलर। आ जाओ भाई, आ जाओ। सिर्फ कादियानी ते मरदई भाई, होर कोई ना कॉल करे। जी सदाम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। भाईजान क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये इन दोनों की बारे में आपकी क्या तासुरात है, जो तस्वीर में दो शक्लें नजर आ रही हैं? सिर्फ कादियानी ते मरदई भाई, होर कोई इधर उधर का बंदा ना कॉल करे। जी सावल भट्ट साहब। हेलो सावल भट्ट साहब, माइक अनम्यूट कीजिए। फड़ी जा जल्दी जल्दी उमर। जी मोहम्मद हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर साहब। हाँ जी बोलिए। हनीफ साहब बोलिए। क्या हाल है सर, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये इन दोनों शक्लों के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मुफ्ती आप भी मुफ्ती है ना? जो ये तस्वीर में दो शक्लें लगी हैं, इनके बारे में अपने तासुरात सर पहली बात तो ये है कि बगैर देखे किसी की बात यकीन ना करो कि वो कैसा इंसान है, कोई बुरा है या अच्छा है। आप मुझे ये बता दूसरा दें, उनका आपको अपना ये जो दो अकीदा शक्लें है, नजर आ रही जो हैं, मर्जी इनके बारे में आपके तासुरात क्या हैं? हम किसी को गालियां नहीं दे सकते, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते किसी को। अच्छा, तो ये हक सिर्फ मिर्जा कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी को है कि वो जो चाहे बकता रहे लोगों के बारे में? सर हर किसी का अकीदा, हिंदू भी तो है दुनिया में, उनको टारगेट भी करना चाहिए फिर तो। नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे देना। ये हक सिर्फ आपके मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर साहब जो हैं, दोनों मिर्जे जो हैं, ये दोनों, इन दोनों को हक है कि ये जिसको जो चाहे बोलते रहें?
बाकी और कोई जवाब नहीं दे सकता इनको, है ना? जी क्या अनीफ क्या साहब, पूछना है इनके बारे में, मतलब कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं? क्लियर बताएं ना, आपका क्या मौक़िफ़ है इन दोनों के बारे में? सर मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकता ना, आपको देखा है, उनके बयान भी सुने हैं, उनकी तकरीरें भी सुनी है, कभी उसने किसी को कोई गाली गलौच नहीं दी। अच्छा, किसी को नहीं दी? छोकरा जो है ये आपके ख्याल में बड़ा अच्छा और तहजीब वाला लफ्ज होगा ना? इसी तरह जो लफ्ज़ चुड्डू है, यार ये भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उनके इज्जत पास वाला दीन है, तारीफ वाला लफ्ज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर उनके पास दीन है, वो माशाल्लाह कुरान जो मैं जानते पूछ रहा हूँ हैं। उसका जवाब दीजिएगा ना हनीफ साहब। मुझे सिर्फ 2 बातें बताएं, ये जो लफ्ज़ छोकरा है ये और लफ्ज़ नहीं चुड्डू, पढ़े, हमें ये नहीं दोनों मालूम। अल्फाज जो हैं बड़े इज्जत और तकरीम वाले अल्फाज होंगे ना आपकी नजर में? सर हर किसी के पीछे मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में बोला गया था कि जो है ना वो आले तशी हो गया, और तहरुल कादरी साहब के बारे में बोला गया है कि उसने नाउजुबिल्लाह गलत। हनीफ मियाँ जो बात पूछ सर रहे हो उसका जवाब मैं नहीं दे रहे। यानी मैं आपको चुड्डू कहूँ या आपको मैं छोकरा कहूँ तो आप बुरा नहीं मनाएंगे ना? सर हर चीज का अपना एक जवाब, हर चीज का होता है ना। मैं भी तो वही मतलब मैं आपको अगर कहता हूँ कि आप मेरे नहीं सर, बुरी बात की बात ही नहीं है ना, आप सीनियर हो माशाल्लाह, हमसे बड़े हो। सर बगैर देखे किसी की कोई वीडियो होती है, शो होती है, तो फिर उससे पता चलता है, या कोई किसी को ना इंसाफी गालियां देता है तब उससे पता चलता है कि यार ये कैसा इंसाफ है, कैसा आदमी है। उम्र किसी सर नहीं देगा, हर किसी की अपनी तरबियत होती है ना, तरबियत से बात आ जाती है। किसी नहीं, मौजू आप मुझे जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। जी शाह जी, उमर किसी मौजू पे बात कर लें, मिर्ज़ा जूनियर की कोई वीडियो चलाएं और उस पर बात करें, बात छोड़ें। वीडियो पहले चला लें, उसके बाद इनसे बात कर लें। शाह जी मेरे पास हाँ वही तो पूछ रहा हूँ ना, कोई आंखों से यकीन करना चाहिए ना। यार हनीफ साहब चुप कर जो तुसी। किसी के मुंह से सुन के तो कोई यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚੁੱਪ यकीन नहीं ਕਰ कर ਜੋ। ਯਾਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਓ ਯਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਓਏ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਓਏ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਓ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਓਏ ਭਾਈ, ਬਰਾੜ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗ ਗਈ ਏ। ਓ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਕਰੋ, ਪੀ ਕਰੋ, ਚੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਜ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗਾ ਉਮਰ? शाह जी मेरे को असल है हैंड्स फ्री वाला वो दूसरा मामला जड़ा है ना वो नहीं सेटिंग होती ना, ते इस वजह तो जड़ा ना मेरे लिए वीडियो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता थे। ਸ਼ੁਐਬ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं भी नहीं चला सकता। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ? मेरे को मोबाइल ही एक ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੈਪਟਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ।
ਉਮਰ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਪਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਤੇ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਕੋਣੀ ਆਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਵੇਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਕਾਲਰ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਲ ਚੱਕਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚੱਕਾਂ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾशिफ भाई भी इस टाइम नहीं है, उस्मान भी नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਲਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਾਲਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, हेलो। अच्छा जी, बारी बारी आओ, जल्दी आओ जी। उस्मान भाई ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਉਹ मैसेज करने बार बार थले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेक आईडी है, वालेकुम। ओरिजिनल है, मेरा फ्रेंड ऐड है। सर जी क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? जी अल्लाह शुक्र है जी। सर मैंने एक सवाल करना था आपसे। ये जो आपने पिक्चर लगाई हुई है, मैंने कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 महीना हो गया है, मैंने इनके कुछ बयान सुने थे तो मुझे अच्छे लगे थे। भाई कॉल करोगे फिर जी मैं बना। देखें हाँ सर, मेरा दावा ये है कि मैं ना किसी को आज तक किसी को गाली निकालता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा सिस्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं अपने आँखों से और कानों से ना सुनूँ ना, तो मुझे किसी पे एतबार नहीं आता, चाहे जो कोई भी हो। तो इन्होंने कौन सी गुस्ताखी की है कि इनको टारगेट किया जा रहा है? कुछ दिन पहले, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 1 महीना पहले मैंने इनके बयान सुने थे जो मुझे अच्छे लगे थे, क्योंकि मैं अहले तशरीह हूँ। सही है? तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आगाह कर देंगे कि इन्होंने क्या कहा है, और इनकी कौन सी वो वीडियो है जो मैं इनकी देख पाऊँ कि हाँ वाकई इन्होंने जी आमिर साहब, किस्मत तुहाडी चंगी कि अज असीं तुहाडा मुतालबा पूरा नहीं कर सकते, वीडियो कोई नहीं विखा सकते, कोई तुहानूं तहरीर नहीं सुना सकते। किस्मत वे तुहाडी बड़ी चंगी, अज तुसीं बड़ी लकी डे दे विच आए जी। जी जी नहीं ना हम कौन होते हैं किसी को गालियाँ निकालने वाले? सही है, माफ़ करने वाला अल्लाह पाक है। सही है, हम कोई भी नहीं होते। और देखिए ना, मैंने आपको पहले सीधा सवाल कर दिया है, जब तक मैं अपने आँखों से और कानों से ना सुनूँ ना, तो मुझे किसी पे भी एतबार नहीं आता। क्योंकि पहले देखो, सुनो, बाद में उस पर एतबार करो। क्योंकि मैंने 1 महीना पहले इनके कुछ बयान सुने थे और जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। वही ना, वही वो जो बयान आपको अच्छे लगे थे, वो अब हम सुनाना चाहें भी तो नहीं सुना सकते। वो जो आपको बयान अच्छे लगे हैं ना, वो यहाँ पे हम ब्राड में चलाना भी चाहें, सुनाना चाहें, नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे पास वो अभी सोर्स नहीं है। जी जी,
नो प्रॉब्लम सर, ये काम तो कर सकते हैं, मुझे इनकी वीडियो का कोई क्लिप या वगैरह बता सकते हैं कि ये सर्च करो, आप देख लो, बाद में मैं इनके देख लेता हूँ, क्योंकि आज मैंने पहली बार टिकटॉक पे देखा है। आज मेरे वैसे मैं जा रहा था टिकटॉक पे देख रहा था, यूज़ कर रहा था, तो मुझे पहले इनकी पिक्चर आई और टारगेट किया हुआ था आप लोगों ने, इस वजह से मैं आया था ऊपर कि मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, इसीलिए सर। आप ऐसा कर लें आमिर साहब, आमिर भाई, आप कल किसी टाइम ना आजिज़ को फॉलो कर लें, तो कल हमारी जो बराड़ चलेगी ना, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम आपको वीडियो भी सुनाएंगे, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें भी पढ़ाएंगे, सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। जी जी, देखिए ना सर, मैं अहले तशरीह हूँ, जी जी अहले तशरीह हूँ जी, कोई बात नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर। जब तक कोई अहले तशरीह किसी साहबी पर तबर्रा नहीं करता, तो हमने कभी नहीं जनाब उसको कोई बात की जी। तो लेकिन जब सर देखे ना, हम कौन होते हैं, सही है, हम कौन होते हैं सहाबियों को गाली निकाले? हम तो सहाबियों के जूते के नौकर हैं भाई, हम कौन होते हैं? वो ऐसा है ना कि अहले तशय्यो हमारे भाइयों में बड़ी किस्में हैं कि बाद जो है वो तबर्रा करते हैं, बाज़ तबर्रा नहीं करते, तो ये तो आपको भी पता होगा। जी तो ये है नहीं बिल्कुल, मैंने देखा एक शाह जी हैं, एक ब्रॉड चलाते हैं टिकटॉक लाइव पे, और बहुत सा उन्होंने यानी कि शियों के बारे में वफ़ाएँ फैलाए हुए हैं, शिया ये हैं वो हैं फिलहाल हैं ढींग हैं। भाई देखो, हर किसी ने अपनी कब्र में खुद जाना है और उसने हिसाब देना है, सही है। हम और तुम कौन होते हैं? हाँ, समझाना जो है ना वो एक बड़ी चीज़ है, इल्म से आगाही कराना वो एक बड़ी चीज़ है, सही है। लेकिन ऐसे में किसी को आकर गालियाँ देने लग जाऊँ या कुछ करने लग जाऊँ, भाई क्यों? ऐसी तो गलत बात है। बाकी सर देखें, मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की है, मुश्किल नहीं मैं कल आकर मैं आपके सुनूँ, क्योंकि मैं हर यानी कि अहले सुन्नत के बयान सुनता हूँ, हर यानी कि इसके अहले तशय्युओं के सारे ऑल टू जेड, सही है। लेकिन बात यह है, हमारा कोई हक नहीं बनता जब तक हम आंखों से देखें ना कानों से सुने, ऐसे टारगेट कर दें, ये तो गलत बात है ना सर। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना हनीफ साहब, मैं कह रहा हूँ ना जी, बल्कि आमिर खान साहब कि आज आप बहुत लकी डे और लकी बराड़ के अंदर आए हैं कि आज हमारे पास ना ही तो कोई वीडियो सबूत है, ना ही मुश्किल नहीं है सर, कल देख लेंगे सर। आप कल मुझे टाइम बता दें कि इतने बजे मैं लाइव आऊँगा जी, और मैं देखूंगा, सही है, मुश्किल नहीं है सर, मैं कल आकर देख लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल किसी टाइम भी कोई बराड़ होगी ना हमारी, तो आप तशरीफ लाइएगा इंशाल्लाह, ज़रूर आपको हम हवाला जात भी देंगे और किताबें भी दिखाएंगे, और आपकी अपनी किताबें भी इंशाल्लाह अब मैं खोलने लगा हूँ। पहले नहीं मैं खोला करता था अहले तशय्युओ की किताबें, लेकिन अब ना कोई थोड़ी सी मजबूरी सी बन गई है आमिर साहब, तो अब मुझे बहुत अल्लाह की कसम मैं मजबूर हो गया हूँ। वो पुरानी किताबें जो 25 साल पहले मैंने बंद कर दी थी, अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि दोबारा वो पटारी खोलूँ। तो मुझे ना लोगों ने बड़ा मजबूर कर दिया है, कसम से बड़ा मजबूर कर दिया है, लेकिन अब मैं नियत कर चुका हूँ कि अब मुझे वो पटारी खोलनी पड़नी। जी जी जी, तो इंशाल्लाह अब पार्टी शुरू हो चुकी है जनाब आमिर साहब, इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक नए रंग और नई तर्ज के साथ हम सामने आएंगे इंशाल्लाह। अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं फिर कुछ हवाला ज़्यादा। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और सलामत रखे, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। तो अभी आमिर भाई आप चले जाइए तो ताकि नए कलर को हम उठा लें। बहुत शुक्रिया जी जी, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम सादिब। वालेकुम सलाम जी ज़रूर, क्या हाल चाल है, ठीक हो? जी अल्लाह शुक्र। कौन?
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਦਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੀ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਫਤਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ। ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਪ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਹੇਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆतिफ खान साहब आए ने जनाब, जिन्हां नाल गल हो चुकी है वो ना करन काल यार। जी आतिफ खान साहब, वालेकुम सलाम जी। क्या हो रहा है ये उधर? किस चीज़ की फ़ोटो लगाई है बाप बेटे की? जी मैंने कहा ये तस्वीर आप लोगों ने जो लगाई है कौन है ये? यार आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं भाई? मेरे आवाज़ एक स्लो आ रही है, पीछे से शोर आ रहा है। नहीं, मैं असल में शॉप पे बैठा हूँ, बहरीन में। अच्छा, शॉप पे बैठे हैं। चलिए आप ना शॉप पे मौजों से बैठे और हम किसी और कॉलर को ले लेते हैं। जी जनाब, इरशाद खान साहब। जी इरशाद खान साहब। जी भाई, ये फोटो किस बारे में लगा है, ये बाप बेटे का? ये किस बारे में है? देख लें, ऊपर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको? नजर तो बस ये बाप बेटे आ रहे, बाकी समझ नहीं आ रहा है इन दोनों बाप बेटे से नीचे नीचे दो लाइनें, वो क्या लिखा हुआ है? ये तो पढ़ा लिखा मैं नहीं हूं ना। अच्छा चलो आप खान साहब नीचे बैठ के सुने। पढ़े लिखे जो नहीं है उनके लिए ये ब्राड नहीं है, ये ब्राड ना पढ़े लिखों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुएब मुबशिर क्या हाल है? नहीं शुएब नहीं, मैं मुफ्ती मुबशिर बोल रहा हूँ जी। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, फरमाइए। मुफ्ती साहब कहाँ से आपने अपना मुफ्तिज़म की डिग्री कहाँ से आपकी? मैंने बस जनाब मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की बीवी से ली है। अच्छा जी, अगले कॉलर आ जाओ जी। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह शुक्र। सर सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देनी है, क्योंकि जितने ये बेगैरत लोग आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं, हालांकि आप उनकी किताबों से दलाइल देते हैं, उनकी किताबों से बताते हैं, लेकिन वो इतनी बकवासबाजी करते हैं। मैं डेली जब भी सोता हूँ ना, मैं रात को सुन के सोता हूँ। मेरे भी इल्म में बहुत इजाफा हो रहा है, और अल्लाह पाक यकीन कर इतना बड़ा जिगरा दिया है कि वो आपको इतनी माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन आप बर्दाश्त करते हैं सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। जी कोई बात नहीं, कोई बात। और अल्लाह आपको जिंदगी दे, और इंशाल्लाह मैं जब भी उम्रा करने आऊंगा आपसे तो मैंने जरूर मिलना है सर, यकीन करें। इंशाल्लाह। ये जितनी देर मुझे गालियां देते हैं ना, मुझे मजा आता है, खुशी होती है कि उतनी देर ये अल्लाह रसूल को गालियां निकालने से बाज रहते हैं। जी 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 बिल्कुल नहीं, असल में इनका असली चेहरा सामने आता है, असल में इनका असली चेहरा सामने आता है, इनका जो तरबियत है ना वो जाहिर होती है। अब ये देखें ना, कहीं पे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और कहाँ पे मैं
जी ठीक है ना। जी तो जी बिल्कुल एक बंदा उन पर तबर्रा नहीं करता, मुझ पर तबर्रा करता है, जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी जनाब? बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा सर जी, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे और सेहत दे, हकीकत बात है, आप हमारा फख्र है, हकीकत जी बात है। कोई और तीसरी जनाब। बात ये कि जब आप इनको कहते हैं ना कि आज वारी वारी सारे ही पै गए हो मैनू, तो पैंदे ते कुत्ते ने सर जी। हाँ जी हाँ जी, कुत्ते ही ने और की ने यार। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सलामत रहे सर जी। जी जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नीचे बैठ के ना सुनिए जनाब, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह ठीक सर, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर को उठाते हैं भाई। जी मसीह मूद, हेलो मसीह मूद, कुछ बोल ते सही ना मरने आ। तेनू मैं की क्या सी माइक अपना ठीक कर। हेलो सेल, सेल लम्मे पै जा। चलो जी अगले कॉलर नूं चुक्कीए, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਯਾਰ ਆਓ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम जनाब। ਭਾਜੀ ਇਹ ਲਾਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ, ਅਖੀਰ ਲਾਨਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਉਹ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। जी जी बिल्कुल है। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੀ ਖਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਂਝ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਿੰਜ ਦਾ ਆਏਗਾ ਸਹੀ ਉਂਝ ਗੱਲ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੌਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਜੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਹਿੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਹੀ ਕਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਹੀ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਈ ਓ ਤੇਰਾ ਸਹੇਲ? ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪਾ ਲਓ ਲੰਮੇ। ਸਿੱਧੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਕਰੋ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਹਿਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕ ਲਾਂ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी वालेकुम। कैसे हो भाई, आप ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह का। भाई आप बहुत बड़े गांडो हो, समझ आई? बहुत बड़े गांडो। वो कैसे? क्योंकि भाई देखो, हमने जो देखा है ये बाप, ये तो हम इसको जानते हैं कि ये काफिर है, लेकिन जो दूसरा है आप उस पर फतवा लगा रहे हो बिना कोई सबूत के, बिना कोई वीडियो के, बिना कोई चीज़ के, अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाइक के लिए और पैसों के लिए। अच्छा, तो मतलब ये कि अगर हम आपको सबूत दें
तो फिर आप इसको गांडू मान लोगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये ना ये कहता है, आपका नाम क्या है खान साहब? मेरा नाम जानान। क्या नाम है? जानान। जनान। जनान। जनान ये जो कहता है कि जनान की माँ को 4 शोहर मिलेंगे। हाँ हाँ। नहीं, ਜੇ ਆਪ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਈ? ਇੰਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਜਾਓ। ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, दौड़ना ही बहादरी है, दौड़ना बहादरी। अब नवा तराना कड मारिया ने। सही है भाई। चलो आओ जी, शियों का प्यो आ गया भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब। जी हुजूर क्या हाल है? जी अल्लाह शुक्र है जी। जी फरमाओ जी। असा की सरकार फरमाना है, 1 मिनट जो है ना, तेरे जनान दी मां दे फुद्दे च लुल मारिया दगड़ दली दे बच्चा तू उत्ते के मुफ्ती साहब नु गालां कड्डे तेरी भैन दा फुद्दा पा। ना भाई नहीं सरकार तू गालां कड्डे आन के दी भैन नु लुल ना दे देंगे असा। ना भाई ना भाई ना। नहीं भाई नहीं कोई गल नहीं सरकार गलत गल है ना। एक आलमे दीन नु बंदा गाल कड्डे दी भैन दा फुद्दा ना पाड़ देंगे असा। नहीं कोई गल गश्ती तेरे मिर्जे जेल में दी भैन दा फुद्दा ते तेरे मिर्जे कादियानी दे मनन वाले दी भैन नु लुल मारिया दगड़ दली दे बच्चे। ताडे मिर्जे जेल में दी भैन दा फुद्दा मारिया ताडे चाहण वाले दी भैन दा फुद्दा पाओ थल्ले मैसेज। ताडी भैन दा कूसा पाड़िया दगड़ दली दे बच्चे। ना भाई ना माइक नोट करो। नवे गल करो जे भैन नु लुल लेने आण के जान गालां कट्टन तानू गल अच्छी नहीं ना। कोई गल नहीं ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ अच्छा नहीं जे सरकार वो है वे शियों के अबू जी गुजारिश ये है कि सौदे सारे ही ने साडे कोल ते किसी दी शराफत दा नजायज़ फायदा नहीं ठाईदा भाई। कादियानियों ते मरज़इयो ते वेख लिया जे ना, इंज दे सौदे भी है ने साडे कोल। सौदा हर तरह दा रखिया असीं। हाँ जी नहीं मुश्किल नहीं जे हजूर कोई इस तरह दा रोला है मुश्किल नहीं सानू नहीं कोई नहीं भाई। गाल नहीं करनी भाई। गाल नहीं करनी। हां कोई गल सवाल ते नहीं करना चाहता मैं क्या। चलो ताड़ी गुफ्तगू सुनने आ लेकिन आन के बाजी अपनी पेश करवान दिया ही बंदा ते मैं कहा चलो कोई गल नहीं फिर जाए ना सानू फिर उत्ते जाना बंदा है साडा। वो ते ना सही कीता भाई ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਰੇਲਵੀ, ਕਦੀ ਦਿਓਬੰਦੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਐਥੀਇਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਥੀਇਸਟ ਦੈਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਕਾਲਰ ਹੁਣ ਭਾਜੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद साहब वालेकुम सलाम। मोहतरम क्या हाल है? तुम ठीक हो? जी शुक्र है जी। थोड़ा जिहा उच्चा बोलिया जे, मैं उच्चा सुनना। जी जी क्या हाल है जनाब? ठीक हो तुसीं? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। दूसरे दीगर भाई ठीक हैं? खैर खैरियत है? जी यार मैं एक छोटा जिहा सवाल कर सकदा? जी दो करो। देखो तुसी इसका जवाब दे दिया लेकिन अखलाक तो गिरिया जवाब ना दिया है। मैं सिर्फ सवाल कर सकता। सवाल हर बंदा ना हर तरह का बंदा कर सकता है। बिल्कुल जी जी। अगर किसी ने गाली गलोच करनी है तो मैं कॉल बंद कर देना। तुसी मैनू थले ला दे। कोई बात नहीं। देखो ना सवाल तुसी कर सकते हो ते सवाल असी भी ते कर सकने हैं ना। जी जी कर सकते हो बिल्कुल कोई नहीं। मेरे अगर पहला सवाल तुहाडा ते अगला साडा की ख्याल है? बिल्कुल हाँ जी जी करो। सवाल यही है कि तुसा
ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ? ਅਲੀ ਠੀਕ है, मोहम्मद अली जी। मतलब मिर्जा जूनियर जेल में? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब कि इसकी वजह क्या है, सब तो बड़ी वजह, इस रीजन के क्यों तुसी कादियानी कह रहे हो? सर मेरा एक सवाल है, तनकीद ना समझे, मैं सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमाया, मैं जवाब देना वा। माइक म्यूट करो जरा, मैं जवाब। जी जी। जो अकीदा ते नजरिया मिर्जा वड्डे मिर्जे दा है ना, सेम ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1974 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਨੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਰ ਕੇ ਨੇ? जी जी मैं सुन रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ? मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी। ठीक है, हाँ गुलाम कादियानी जो भी है, ये तो चलो कादियानी हैं, ठीक है। क्यों कादियानी हैं? क्योंकि इन्होंने साढ़े नबी तो बाद कोई नबी नहीं है, खातम नबी, इन्होंने नबी होने का दावा किया, ठीक है, इंजी है। लेकिन मिर्ज़ा दूसरे साहब मिर्ज़ा मोहम्मद अली ਜਿਹੜੇ जेल में इन्होंने तो कोई इस तरह की गल नहीं की। ये तो बाकी ਜਿਹੜੇ शिरक वगैरह उन्होंने तो रोकते हैं भी तुसी दरबारां ते ना जाओ, सजदे ना करो, ठीक है। मतलब ये तो ये गल कहते हैं। इन्होंने तो कदे नहीं कहा कि मैं नबी हाँ, तुस आओ मेरे हत्थ बैत करो, कोई कदे इस तरह की गल भी नहीं ना की। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ। जी जी सही है, मैं ये पूछ रहा कि तो कोई इन्ना कोई इस तरह की गल कदे नहीं की भी तुसी दरबारां ते जाओ, तुसी बाबियां मनो। ये डायरेक्ट गल कर देन कि मदद वास्ते असी रसूला भी नहीं पुकारते हैं, मदद सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर दी और अल्लाह की ज़ात दे असी सारे मुहताज हाँ, ठीक है। हुण तुसी गल करो कि गल गलत करते हैं। दूसरा जो गुलाम कादियानी सी वो तो गल्लां नहीं सी करदा, वो तो ये आखदा सी जो कुछ है मैं ही हाँ। बोलो तुसी जी, माइक म्यूट करोगे तो ठीक हो गया। अच्छा, गुजारिश है वे कि जो अकीदा ते नज़रिया ते जो तरीका वारदात मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी दा है ना, वही अकीदा ते तरीका वारदात मिर्ज़ा जूनियर जेल में दा है। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी भी वाबी था, रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ता था, गैर मुक़ल्लिद था, वो किसी फ़िक़्हा को नहीं मानता था, वो किसी बाबे को नहीं मानता था, वो किसी कुरान और हदीस को नहीं मानता था, सिवाय वो कि जिसके अंदर वो अपना लुकमा घुसेड़ता था कि कुरान की इस आयत का मतलब ये है और हदीस का मतलब ये है। सेम वही अकीदा और नज़रिया और तरीक़ा वारदात मिर्ज़ा जूनियर जेल में का है। ये भी जनाब वाबी है, रफ़ा दैन करने वाला है, पग इसने भी बांधी, पग इसने भी बांधी, दाढ़ी इसने भी रखी, दाढ़ी इसने भी रखी, वो भी मिर्ज़ा, ये भी मिर्ज़ा। हत्ता कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का जो पढ़नाना है वो मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी के 313 सहाबियों में से जो आखिरी सहाबी है ना, वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का पढ़नाना है। आप उठा के देख लें तो रिश्तेदारी भी इसकी है, अकीदा नजरिया भी वही है, सब कुछ। माइक म्यूट अभी रखें, माइक अभी म्यूट रखें, अभी माइक ओपन करने की बारी नहीं आई। आपकी बात मैंने बड़ी तवज्जो से सुनी है, अब मेरी बात आप सुनेंगे, समझ आई कि नहीं? रही बात यह कि असम्बली ने सिर्फ इस वजह से नहीं इसको कहा था कि इसने नबूवत का दावा किया लिहाजा ये काफिर है, नहीं 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 ना, बल्कि बात तो ही से शुरू हुई थी। मिर्ज़ा सीनियर गुलाम कादियानी का ये अकीदा है कि अल्लाह ने ये इंसान को ये ऑफ़र करवाई है और ये मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि अल्लाह फरमाता है कि जब तुम मेरी इताअत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे, वो 60 साल की उम्र हो, 70 साल की हो, जितनी भी तुम्हारी उम्र है, तो फिर मैं तुम्हें अपनी जुमला सिफ़ात दे दूँगा।
یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے خلیفہ زانی، جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا. تو دوسرا خلیفہ قادیانیوں کا بڑا بشیر الدین محمود جس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے انوار العلوم. اس کے اندر ایک رسالہ ہے اسوہ حسنہ، اس کے اندر یہ بات وہ کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی سونپ دو تو میں تجھے پھر اپنی صفات دے دوں گا. یعنی ایک چھوٹا سا خدا بن جاؤ گے تم، خدائی صفات تمہیں جنت کے اندر مل جائیں گی. سیم وہی عقیدہ اور نظریہ مرزا جونیئر جیلمی بیان کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے 60 سال کی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا اور ساتھ کن فیکون کی صلاحیت بھی دے دوں گا، اور پھر تم جو چاہو گے جو مانگو گے تمہیں ملے گا. حتیٰ کہ کوئی ایک مرزیوں کی عورت جو ہے وہ اگر چاہے گی کہ مجھے 4 شوہر مل جائیں تو اس کو وہ مل جائیں گے، کیونکہ وہ جو چاہے گی وہ ہوگا. اور جو چاہے گا مرد اگر چاہے گا کہ میں یہاں پہ اورل سیکس کروں یا کرواؤں تو وہ بھی ہوگا. جب دنیا کے اندر یہ چیز جائز ہے تو آخرت میں بھی اگر کوئی مرزئی چاہے گا جنت کے اندر کہ وہ اورل سیکس کرے یا کروائے وہ سب کچھ ملے گا. حالانکہ یہ عقیدہ قادیانیوں سے چلا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے. تو یہ منی خدا کا عقیدہ قادیانیوں نے دیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کی یہ جو عبارت ہے کہ رأیتنی فی المنام عین اللہ و تیقنت اننی ہوا، کہ میں نے اپنے منام میں اپنے آپ کو خدا بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں. تو قادیانیوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو قادیانی آگے سے یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ منی خدا ہونے کا دعویٰ ہے، وہ اللہ اکبر تو اللہ ہی ہے، یہ اللہ اصغر ہے مرزا قادیانی، یعنی منی خدا. جو بگ گاڈ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ منی گاڈ ہے اصل میں مرزا سینئر غلام قادیانی. تو سیم یہی عقیدہ اور نظریہ مرزا جونیئر جیلمی نے دیا. تو اب آپ احمد صاحب 1 2 3 فرمائیے، کیا آپ اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ یہ توحید کی بات ہے، اگلی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے تو توحید کی بات کر لیتے ہیں نا. یہ وہی عقیدہ تھا جو 1974 کی اسمبلی کے اندر بھی ڈسکس ہوا تھا، اور اسمبلی نے کہا کہ تمہارا تو دین اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کہ تم نے عقیدہ توحید کا ہی بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے. جی احمد صاحب اب آپ مائک اوپن کریں اور بولیں. جی بھائی جان، بس میں نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ آپ کے نزدیک مرزا محمد علی انجینئر جو ہیں وہ کیا ہیں، بس یہی پتہ کرنا تھا. آپ نے بتا دیا، چلیں پتہ چل گیا کہ آپ کے نزدیک کیا یہ ہے کیا ہے. نہیں اب آپ بھی اس کو لانتی مانتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کسی کو زور زبردستی تو آپ نہیں نہ منوا سکتے. نہیں، یا تو پھر جواب دیجیے نا. ہر انسان ٹھیک کا ہے، اپنا ایک بالکل آپ کا اپنا ہے، آپ نہ لعنت ڈالے، آپ لعنت نہ ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم جو بات ہم نے کی ہے اس کا جواب بھی تو دینا. پھر سنیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی صاحب، بات سنیں. میں نے ابھی تک جتنا اس کو سنا ہے نا، ٹھیک ہے، میں جیلم تک بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا اس کو سنا ہے اس نے کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو وہ جو آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب لگائیں، سامنے کریں تاکہ بندوں کو پتہ چلے کہ مرزا صاحب کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر چیز کے پیچھے نا ایک ریزن ہوتا ہے نا. جب قرآن میں کوئی آیت ہم کسی کو سناتے ہیں تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں وہ موجود ہے، انسان لاجواب ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ واقعی ایسا ہے، تو ادھر سب کچھ کھولیں. صرف تصویر لگانے سے کام تو نہیں چلتا نا. ایسے تو کوئی کسی کی بھی تصویر لگا کے کسی کو قادیانی بول دے، کسی کو کیا بول دے، کسی کو کیا بول دے، یہ تو پھر روز ہی ہوتا رہے. ٹھیک ہے، تو باقی میری کوئی بات بری لگی ہو آپ کو تو معذرت، لیکن کوئی بھی بات کریں تو وہ پورے پروف کے ساتھ کریں، صرف زبانی نہیں، اس کے آپ ثبوت بھی ساتھ رکھیں تاکہ کوئی پوچھے فوراً نکال کے بتاؤ جی یہ ہے. جس طرح یہ ہر حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور سامنے حدیث بھی مینشن کرتے ہیں، قرآن کی آیت بھی مینشن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کچھ اپنے سے نہیں بتاتے. لیکن آپ نے زبان سے بتایا ہے تو ہم کس طرح مان لیں؟ جی مائک میوٹ کریں. میں تو آپ
मैं आपकी तरफ ना 15 मिनट तक करता हूँ कॉल। जी ठीक है। अच्छा, अब यही मसला है ना कि आज इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास ना ही तो कोई हवाला है। ये जो भाई आए थे अहमद साहब, बिल्कुल बजा हक बजाना है भाई कि जब तक ये सुनेंगे नहीं या पढ़ेंगे नहीं तो ये कैसे यकीन करेंगे। मैं यकीन जाने आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, इत्तेफाक करता हूँ, और मुझे ये बड़ी पसंद आई है ये बात कि मुझे भाई वो वीडियो दिखाओ और वो मिर्ज़ा कादियानी की वो किताब पढ़ाओ, तो फिर मैं कोई फ़ैसला करूँगा। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये है कि आज मैं मजबूर हूँ कि आपका मुतालबा मैं पूरा नहीं कर सका, तो आप कोशिश करें कि कल या परसों जब बराड हो ना तो आप तशरीफ़ लाइएगा। तो आपने मुझे याद करवाना है कि भाई वो तुमने मिनी गॉड वाला मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का अकीदा सुनाना था, तो वो वीडियो दिखाओ और वो कादियानियों की किताब दिखाओ मुझे। ये लाजमी आपने मुझसे ये तलब करना है कल या परसों, ठीक है। ये याद रखिएगा, आज नहीं, आज बिल्कुल भी नहीं। जिस टाइम वीडियो दिखाई दी उस टाइम ये यकीन नहीं करते। कोई गल नहीं, लेकिन रोला ये है ना शुएब कि आप लोग अपने मामलों को के ऊपर गौर कर लें कि ये तो फिर वो ही हुआ कि एक दो बंदा है आप लोगों में कि जो पूरे हथियार रखता है, तो आप तो सारे फिर लूले लंगड़े ही हो गए ना। किन्ना तुसी अज जलील कराया रल मिल के तुसां सारियां ने। बिल्कुल शाह जी, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਖਲੋਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਬਰਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮਸੀਹ ਮੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਕ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਹਿਲ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਖਾਲੀ ਖੋਲੀ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਨੇ ਬਸ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਸਰੇ ਦੱਸ ਐਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਐਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਫੜੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਐ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਲੈ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੇ ਵੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੰਨ ਖਿੱਚਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब बस बैठे बैठे कुछ चार लफ्ज दिमागे आए सन, मैं कहा चलो थोड़ा मूड भी ठीक हो जाए ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ
ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਲੇਟ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਜੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇਤਫਾਕਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਕੋਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਰਾਡਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਵੱਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਓ ਮਰਜ਼ਈ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਚਾਰ ਯਾਰ, ਏ ਕੰਜਰ ਕਰਨ ਔਰਲ ਸੈਕਸ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਕੰਜਰ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ। ਉਹ ਕੰਜਰੋ ਮਰਦੇ ਜੇਲਮੀ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਯਾਰ, ਓਏ ਮਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਚਾਰ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ, ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਮੋਮਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਅਸ਼ਿਦਾਉ ਅਲਲ ਕੁਫਾਰ व रुहमाउ बैनहुम। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪੁੰਨਣ ਡਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੈਨ ਬਦਤਰੀਨ ਜੈਨ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਜੈਨ ਜੋੜ ਪਿਆ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰੋਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਆਂਦਾ ਆਹੋ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਚ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਦਗੜ ਦੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਠੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਝੁੱਥਾ ਪਾੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਆਇਓ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਓਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब जी वालेकुम सलाम जी जनाब। हज़रत साहब मोहबाना गुजारिश ना एक क्वेश्चन है जिस सर तुसी हुक्म करो तो मैं कर सकना, नहीं तो मैं चला जाना जी। करो जी क्वेश्चन। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਘੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मुसलमान हूं। चुप करके माइक करो म्यूट, मैं जवाब देन लगा। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਹੋ, ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਤ ਦੱਸਣਾ ਨਾ
ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਬਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਏ। ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਾਓ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤੇ ਧੋਵੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਟਰ 2-3 ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਥੱਲੇ ਲਟਕਦੀ ਜੇ ਪਈ ਫੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸਤਿਆਰਤਨ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇ ਔਰ ਜ਼ਰਬੁਲ ਮਿਸਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਦੁੱਲਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ, 4 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ਉਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹੇ ਜਾਮੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਲਾਨਤ, ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਵਜ੍ਹੇ ਜਾਮੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪੀਆਂਗੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਹੋਏ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਏ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਲਾਨਤ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅਗਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਵਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਓ ਜੀ। ਮਿਊਟ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਨਵਾਜ਼? Egypt